topic which we are covering. Community radio, as we know, that it is of the community, by the community, and for the community, as a medium which has emerged as a vibrant tool for strengthening democracy and governance. And it is an instrument for the community empowerment, as it has discussed yesterday also, that it is a process, or it enhances the process of the community empowerment. Community radio stations make positive transformation in life of the people through information dissemination, accurate information dissemination. And CR provide community with various platforms for personal development and inculcating new vision through making community aware about their rights and privileges. So today is the day 2 of the program, and I hope you have got benefited from the yesterday discussions, and the recommendation which has came up yesterday has well noted, and it will get documented in the final report also. So in day two we have 2 technical sessions. First session is linkage between DRR, disaster risk reduction, and community radio, which was earlier supposed to be taken by Dr. Ashish Panda, though he is not available today. So this session will be taken by Mr. Nakul Kumar Tarun. And we have another session on role of community radio in spreading awareness towards resilience building and case study based discussion, which was to be taken by Dr. Piyush Ratela. And now it will be taken by Dr. B.S. Panwar of Community Radio Association. Now I hand over to Mr. Shreyas Dwivedi. He is junior consultant with Resilient Infrastructure Division of NIDM, to give recapitulation of the day 1 of the training program. And also he will be moderating the program further in day 2. Thank you, and over to you, Shreyas. Thank you very much, ma'am. Good morning to all the participants. On behalf of NIDM, I would like to welcome you on this 3-day online training program on communication infrastructure resilience in rural and tribal communities in India. This is our day 2. So before proceeding further, I would like to recapitulate what we discussed yesterday, what we learned yesterday. So give a brief idea कि क्या हमने कल किया था. So the day 1 was moderated by Dr. Tanushree Verma ma'am, and after that we listened Dr. O.P. Singh sir. He is former DGP Uttar Pradesh and DG NDRF. He delivered a keynote address and discussed about disaster resilient infrastructure, Assam, West Bengal, Bihar, UP, इन सब के कम्युनिटी रेडियो फैसिलिटीज के बारे में, अर्बन एंड रूरल हैजार्ड्स के बारे में, एंड सोसाइटल चेंजेस के बारे में. आफ्टर दैट a welcome address by Sri Surendra Thakur sir, who is JC consultant ICHR admin NIDM. उन्होंने अपना welcome address deliver किया. He talks about COVID pandemic, robust infrastructure, role of connectivity, integration of connectivity and communication, information exchange between stakeholders, radio communication in rural areas, technology driven response set, and infrastructure. After his welcome address, a special address was delivered by Mr. Rajendra Singh. He is a former Director General, Indian Coast Guard, member NDMA. He talked about government policies on community radio, new community radio guidelines 2006, and PM 1.0 agenda, last mile connectivity, etc. And after that, Dr. Garima Agrawal, Senior Consultant, Resilient Infrastructure Division, NIDM, gave an overview of the event and set the context of the 3 days online training program. During his speech, he discussed about disaster events, reliable communication systems, role of community radio during a pandemic, how it helped local NGOs, strengthening rural and local population, local languages and local capacities, and other communication systems. This was our inaugural session. After that, session 1, our technical session started, and session 1 was taken by Sri Gauri Shankar Kesavani sir. He is Additional Director CRS, Government of India, Ministry of Information and Broadcasting. Gave a presentation on basic concepts of community radio and its history in Indian context. During his presentation, he talked about the role of All India Radio, role of different institutions, social media podcast, synergy between media and disaster management, and credibility also.
And in the last, the second session was taken by Sri Rajiv Kumar Shukla ji. He is a former ADG AIR. He gave a presentation on role of community radio in early warning communication during disasters. He talked about media roles and the fact that disaster is actually happening, and radio, how can radio help in these disasters. So around 170 to 180 participants were there during yesterday's program. I hope all of them will join today also. So I think in this words, we would proceed for today's technical sessions. Today we have two technical sessions. One will be taken by our favorite Nakul Kumar Tarun sir. This will be our first session, and after that we will the second session will be taken by Sri B.S. Pawar, Dr. B.S. Pawar sir. He is President Community Radio Association. So before further any wait, I think we can start our first session. Sir, can we start? Nakul sir? Obviously. Okay, so I welcome Mr. Nakul Kumar Tarun sir. He is Director, Zone 4 Solution, and he is best known the founder of Zone 4 Solution, known for disaster management services with the single aim of reducing the risk of businesses' life and taking care of emergencies response. He was Deputy Director with the Directorate General of NDRF and Civil Defense, Ministry of Home Affairs, the Government of India. He also served international welfare agencies such as United Nations Development Programme in India and South Asian Association for Regional Cooperations, or disaster management centers. Sir will talk about the linkages between DRR and community radio. So over to you, sir. थैंक यू श्रेयस। ऐसे मैं श्योर हूं कि जितने लोग भी इस प्रोग्राम में कल भी जुड़े थे और खास करके कम्युनिटी रेडियो वाले, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत बढ़िया जानते हैं और ये आवाज भी जो है वो मोस्ट ऑफ कम्युनिटी रेडियो पहचानता है और उनके जो ऑडियंस है, जो उनके लिसनर्स हैं, तमिलनाडु, ये बीच में कोई बोल रहे हैं तो बेटर है कि हम लोग, मैं आई लव टॉकिंग और खास करके आप लोग सब बात करने वाले ही लोग हैं, तो केवल थोड़ा सा मुझे टाइम पे, मैं हार्डली 10 से 15 मिनट में मैं अपनी बात कह जाऊंगा और उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तो ये मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाया हूं। होस्ट, अच्छा ये डिसेबल किया हुआ है, किसी इनेबल करो भाई। तो एक, हाँ अब अभी मुझे स्क्रीन मिल गया है। तो आप लोग देखिए, अगर आपको ये स्क्रीन, तो कोई मुझे बता भी सकता है कि स्क्रीन दिख रहा है? जी श्रेयस, सर। आप ही? यस सर, दिख रहा है। थैंक यू। तो आइडिया इज कि मेरा रोल आज ये है कि मैं इस बात को इस्टेब्लिश कर जाऊं, हालांकि ये वेल इस्टेब्लिश्ड है कि कम्युनिटी रेडियो और डिसास्टर मैनेजमेंट जो है, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, डिसास्टर नहीं, डिसास्टर मैनेजमेंट, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से कम्युनिटी रेडियो को निकाल दिया जाए, कम्युनिटी रेडियो या कम्युनिकेशन के पूरे साधन को निकाल दिया जाए, तो जो डिसास्टर का साइज होगा वो बहुत ही भयावह होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इसी के वजह से हम लोग कम्युनिटी रेडियो को साथ लेकर के, कल भी मैंने कहा था कि कम्युनिटी रेडियो का और रेडियो की जो कैपेबिलिटी है डिसास्टर मैनेजमेंट में सपोर्ट करने की, वो आज के तारीख में अनयूज्ड पड़ा हुआ है। हालांकि हम लोगों ने उसे थोड़ा आपके पनवार साहब के सहयोग से थोड़ा तो बढ़ाया है, क्योंकि आपने हमें, हम दिल्ली में बोलते थे और आपने लगभग पूरे भारत में हमें
स्कूल सेफ्टी को लेकर के और उस समय वैक्सीनेशन के ड्राइव को, रोल आउट ऑफ वैक्सीनेशन के मैसेजेस को आप लोगों ने गांव-गांव तक पहुंचाया था। तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा कि आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट लोग हैं आप डिजास्टर मैनेजमेंट में। मैं केवल ये कहना चाहता हूं आपको, कैसे इस बात को हम इस्टेब्लिश करते हैं, पहले ये समझते हैं हम लोग। मैं आपको एक छोटा सा, ये हमारे इंडिया का मैप है और हम इसे अपने भाषा में, जैसे आप लोग कम्युनिटी रेडियो वाले हैं वैसे मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का आदमी हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर हूँ, तो अपने भाषा में हम इसे मल्टी हजार्ड मैप कहते हैं। मल्टी हजार्ड का मतलब ये हुआ, मैं केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा देश है, आप अब जहां भी रहते हैं, कोई रेडियो वाले आप जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं तो आप वहां देख सकते हैं कि किस किस तरह का हजार्ड वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी और नया आएगा, जैसे कोविड एक नया आया है, कोई इस पे मैप नहीं है, लेकिन जो पहले से हजार्ड हैं जैसे अर्थक्वेक है ना, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है, फायर है, फ्लड है, तो ये सब पहले से ही हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। और कल भी ये बात हुई थी कि हजार्ड पहले आया था, आदमी बाद में आए हैं, डिजास्टर पहले आया था, हम लोग बाद में आए हैं। तो ऐसे ही आप अब देख सकते हैं कि आप और हम कितने हजार्डस स्पेस में रह रहे हैं। तो अब तो एक तो ये है कि हम लोग ये मान के बैठ जाएं कि चलो ठीक है यार, ये तो भगवान की मर्जी है, अब क्या करें, आग लगेगी, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, हमारे किस्मत में लिखा होगा तो मरेंगे, हम ऐसा मान के बैठ जाए। पर हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग ये मानते हैं, वी फर्मली बिलीव दैट, कि देखो भूकंप तो आएगा, उसे हम नहीं रोक सकते, बट वी कैन रिड्यूस द, हम लोग जो उसकी मारक क्षमता है उसको कम कर सकते हैं, ऐसा हम लोग बिलीव करते हैं। फ्लड आएगा, हर साल देखिए कोसी में फ्लड आता है, ब्रह्मपुत्र में फ्लड आता है, गोदावरी में फ्लड आता है, गंगा में फ्लड आता है, लेकिन आप अगर जो डेटा उठा करके देखेंगे तो हर साल हम लोग वो जो फ्लड की, जिसको मैंने मारक क्षमता कहा है ना, उससे हम कम करते जा रहे हैं। आप देख ले, ठीक है, कई बार नहीं हो पाता, इसलिए नहीं हो पाता कि उस समय हजार्ड जो है वो ज्यादा बड़ा होता है और वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी आप लोगों ने कई एग्जांपल सुना कि कहीं पे भाई रेन को तो हम मैनेज कर सकते हैं, क्लाउड ब्रस्ट हम लोग एकदम से मैनेज नहीं कर पाते हैं, या उतना हम लोग जल्दी इवैक्यूएट नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं आपको एक कंटेक्स्ट समझाने का कोशिश कर रहा था कि ये हजार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारी पॉलिसी ये है कि हम डिजास्टर के मारक क्षमता को कम करेंगे। इसी को हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं, कि हम इस कम करेंगे इसे, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। इसके लिए कई ऑलरेडी लीगल फॉर्मेलिटी सब कुछ हो चुका है। उदाहरण के लिए कि ऑलरेडी डीएम एक्ट है हमारे इंडिया में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो क्योंकि हमें पता है आप सब लोग कम्युनिकेशन के लोग हैं, तो मैं इसे और डिटेल में नहीं ले जाकर के, हाँ जिसे जहां पे बाद में अगर लगे कि हम इस पे डिस्कस करें तो हम लोग उस पे डिस्कस कर लेंगे। अब ये समझ में आ गया है आपको कि हजार्ड है मतलब रिस्क है, और उसी डिजास्टर के रिस्क को हम कम करना चाहते हैं। क्यों कम करना चाहते हैं और कैसे कम करेंगे? तो आइडिया इज कि देखिए, जो मैं अभी कह रहा था कि नेचुरल हजार्ड्स जो है वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऐसे ज्योग्राफी है हमारे देश की, ऊपर हिमालय है, नीचे समंदर है, साइड में हमारे कुछ एनिमी कंट्री भी हैं, है ना। तो ऐसा एटमॉस्फेरिक, जियोलॉजिक, हाइड्रोलॉजिक ऐसा हमारा सिस्टम बना हुआ है कि यहां से हजार्ड्स क्रिएट होते हैं। डिजास्टर्स आर ऑफन फॉलो नेचुरल हजार्ड्स। अच्छा, कई बार क्या होता है कि डिजास्टर्स जो हजार्ड्स हैं वो और 2-3 मिल जाते हैं आपस में, और फिर वो और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जहां कहीं भी आपने देखा हो जो मेजर फायर होता है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। तो क्या हुआ, हजार्ड जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। आप देखिए, जहां कहीं पे भी अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद आपने सुना होगा अर्थक्वेक फॉलोड बाय फायर। क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है
तो ऑब्वियसली क्योंकि उस समय ऑलरेडी सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है, वो पता नहीं होता लोगों को, तो कहीं जो बिजली के खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं, कहीं स्पार्किंग हो जाता है और इट्स इग्नेट इन्फेर्नो, वो बहुत बड़ी फायर होती है जिसे मैनेज करना हम लोगों के बस की बात नहीं रह जाती है उस समय इमीडिएटली। ठीक है, बाद में हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन इमीडिएटली वो कंट्रोल में नहीं आता, इसीलिए हम लोग उसे डिसास्टर कहते हैं। अगर हम इमीडिएटली कंट्रोल कर ले तो डिसास्टर कहाँ रह जाएगा। तो हम लोग ये सब मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि इस वनरेबिलिटी को कम करना है, इसी वनरेबिलिटी को, इसी रिस्क को कम करना है। क्यों कम करना है? कि ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो, ये समझना है। मेरे हिसाब से यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैं लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये मैंने टेक्निकल साइड नहीं लिया है, ये मुझे पता है कि सब लोग कम्युनिकेशन के, तो केवल कम्युनिकेशन साइड से ही मैंने लिया है। अच्छा, अब हम रिस्क को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं ये देखते हैं, या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। गवर्नमेंट साइड से अभी कल भी सारे स्पीकर्स आए और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 3 टायर स्ट्रक्चर है डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए। नेशनल लेवल पे नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ऐसा ऑलरेडी है। तो हमने कहा कि फोकस आर स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस, मतलब पूरे देश के जो डिसास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस सिस्टम है इसे स्ट्रेंथन करना, इसे मजबूत करना है। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन। अब देखिए यहां से आपका रोल, कोई बात कर रहे हैं, इनको बात नहीं करना चाहिए, इनका माइक बंद करो धर्मवीर। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन जो है ये ज्यादा मजबूत होना चाहिए। क्यों? कल भी ओपी सिंह जी ने और जो और भी स्पीकर्स आए थे उन्होंने भी बताया कि इमरजेंसी में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो जो रिस्क है वो कई फोल्ड बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने जेएनके का फ्लड बताया था कि व्हेन ही रीच टू द श्रीनगर, तो उन्होंने पाया कि भाई कलेक्टर साहब से बात ही नहीं हो पा रही है, मुख्यमंत्री से बात ही नहीं हो पा रही है। तो ये लोग दिल्ली से कुछ रेडियो फोन बोलते हैं वो एनडीआरएफ वाले, उन्होंने मंगवाया और उसको आपस में जो कुछ हेड्स थे उन्होंने सब लोगों, फिर रेडियो फोन पे बात शुरू हुई। बाद में जो अनदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो स्टार्ट हुआ, तब जाकर के काम चालू हुआ। ऐसे ही गुजरात में जो भुज में अर्थक्वेक आया था वहां का भी यही इशू है कि जब भुज में अर्थक्वेक आया था तो कम्युनिकेशन टोटल डिसरप्ट हो गया था। कलेक्टर जो थे वो खुद ही पेड़ के नीचे बैठे थे। दाऊद, उनके पास एक सैटेलाइट फोन था लेकिन किसी को चलाना नहीं आता था उस समय। मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होगा तो लेट से, क्योंकि डिसास्टर जब भी आता है तो लोकली आता है। लेट से कि अरुणाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में या केरला में कहीं लोकल किसी डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर डिसास्टर आया है और अब वो ये जानना चाहता है, उसे अब हेल्प चाहिए। तो अगर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि जिस समय भी डिसास्टर आता है, जो मेजर डिसास्टर आता है, उस समय जो कन्वेंशनल, मैं कह रहा हूं कन्वेंशनल कम्युनिकेशन का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उदाहरण के लिए आपका मोबाइल नहीं चलेगा क्योंकि मोबाइल के टावर गिर जाते हैं, लैंडलाइन फोन नहीं चलेगा क्योंकि केबल ब्रेक हो जाता है, टीवी नहीं चलेगा ऑब्वियसली क्योंकि मोबाइल और टीवी के जो टावर्स होते हैं सब गिर जाए। तो कन्वेंशनल जो कम्युनिकेशन के साधन हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं। तो क्या है? इंस्टीट्यूशन एंड बिल्डिंग कम्युनिटी कैपेसिटी, ये 3 चीजें थी करना हम लोगों को कि कम्युनिटी का कैपेसिटी बढ़ाएं। कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं आप लोग, है ना? वो आपको और आगे हम डिस्कस करेंगे, आप जानते भी हैं, जिसमें बच्चों का भी अब करते, जो उनके लायक है उनको कर सकते हैं, राइट। चौथा एलिमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं डीआरआर, डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनवा करके, डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बाय ए क्वालिफाइड डिसास्टर मैनेजर। तो ये देखिए, हमने जैसे कम्युनिटी आया, आपका रोल आ गया कम्युनिटी रेडियो का, और कम्युनिकेशन आप हैं। आप अब ये समझिए कि जो हमारे ऑलरेडी 12-13 इमरजेंसी
सपोर्ट फंक्शनरी आइडेंटिफाइड हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें उसमें सबसे पहला जो इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज है वो कम्युनिकेशन है, कि सबसे पहले कम्युनिकेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे डिसास्टर होता है और नीड असेसमेंट भी करना है इमीडिएटली कि भाई क्या चाहिए, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो कैसे इंफॉर्मेशन आएगा, और मैं क्या भेज रहा हूं वो कैसे इंफॉर्मेशन जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये मैंने पहले ही बात कर दिया कि मेजर डिसास्टर कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम डिसरप्ट हो जाते हैं, सैटेलाइट एंड रेडियो कम्युनिकेशन बचता है, जिसमें आप लोग इस सारे कम्युनिटी रेडियो वाले आते हैं। 2008 के एक डेटा के हिसाब से एक एस्टिमेट लगाया गया था कि कितनी कम्युनिटी रेडियो की जरूरत है, तो ये पाया गया था कि कोई 8000 कम्युनिटी रेडियो की जरूरत है भारत में, राइट। जिसमें से कल परसों से बात चल रही है कि कोई 366-364 स्टेशन जो है वो सीआर रेडियो एसोसिएशन जो है उसमें एक्टिव है, फंक्शनल है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा गैप है इस कम्युनिकेशन का जो वॉइड है उसको भरने के लिए। कम्युनिटी रेडियो स्पेशलाइज एक सिस्टम है जो लोकल लोगों को लोकल, ये कल भी बात हुई थी, तो इस पे हम आप और बात नहीं करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि डीआरआर को कम करने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं आप लोग, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन है ना। एक उदाहरण लेते हैं फ्लड का, क्योंकि बहुत सारा है। तो इंडिया में हर साल, मैं इंडिया की बात कर रहा, इंडिया में हर साल 229 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है ना, सॉरी जो पूरा एरिया है उसका कोई 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, उसमें बाढ़ आता है, और 75 लाख हेक्टेयर जो लैंड है, और 1600 लाइफ, ये देखिए 1600 लाइफ्स आर लॉस्ट। और जो नुकसान होता है ये आप इमेज में देख करके आप समझ सकते हैं कि ऐसा इंडिया में शायद ही कोई होगा, इसलिए जानबूझ करके मैंने फ्लड लिया, नहीं तो कोई और डिसास्टर भी मैं एग्जांपल के लिए ले सकता था जिसने फ्लड नहीं देखा हो या फ्लड की समझ नहीं हो। तो ये केवल मैं दिखाना चाहता था कि इतना नुकसान हर साल होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए कि बाढ़ आने से पहले हम क्या करें। टू प्रिपेयर फॉर अ फ्लड यू शुड अवॉइड बिल्डिंग इन फ्लड प्रोन एरिया अनलेस यू एलिवेट और रीइंफोर्स योर होम, राइट। तो अब देखिए आपका रोल निकल के आना शुरू हुआ कि ये बात मैं यहाँ कह रहा हूं, चलिए ठीक है, जो सिविल इंजीनियर हैं, जो डिसास्टर मैनेजर्स हैं, वो ये बात समझते हैं, लेकिन जो आपके लिसनर्स हैं गांव में, रिमोट एरिया में, उनको ये बात कौन बताएगा? जहां मन होता है वहीं घर बना लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, 2006 में हम लोग एक फ्लड में बाड़मेर गए थे। बाड़मेर राजस्थान में एक जगह है, और आप सब लोग जानते हैं कि वहां पे पानी काफी कम है, लेकिन 2006 में वहां एक बाढ़ आया था, और जब हम लोग वहां पे पहुंचे रिस्पांस टीम लेकर के, तो पता लगा कि जब फ्लड आया, सोचिए लोगों को कितना कम अवेयरनेस होता है कि वो घर के अंदर छुप गए और अंदर से गेट की कुंडी बंद कर लिया। ओब्वियस सी बात है, पानी गेट की कुंडी बंद करने से नहीं रुकना था, वो पानी उनके घर में एंटर कर गया, और बाद में फिर हम लोगों को डोर ब्लास्ट करके उनकी डेड बॉडी निकालनी पड़ी। अच्छा, ये देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, क्योंकि वो जिस परिवेश में रह रहे थे उन्हें वैसे ही पता था वहां पे जंगली जानवर मोस्टली आते हैं, तो उनके बच्चों को उनकी प्रैक्टिस यही है कि कभी कोई इस तरह का खतरा है तो घर में अंदर घुस जाओ, और वो कुंडी लगा लेते, बंद हो जाते हैं अंदर से। या उनका जो घर बना हुआ होता है हिस्टोरिकली, वो ऐसे बना होता है कि लो लाइंग एरिया में बना हुआ होता है, कि ताकि जो सैंड स्टॉर्म वगैरह आए तो वो बच सके, बाहर के जो सैंड ड्यूज है उनसे प्रोटेक्ट हो पाए। तो मतलब नीचे घर बनाते हैं, लेकिन जब प्लेन में आप जाएंगे तो देखेंगे अगर सैंड ड्यू का एग्जाम्पल है तो ऊपर घर बनाएंगे वो, क्योंकि वहां फ्लड आता है। तो वो हजार जो वहां पे पहले से हजार्ड एग्जिस्ट करते थे, उसके हिसाब में से उन्होंने अपना घर बनाया था। अब तो इसमें हमारा रोल कहाँ आता है? कम्युनिटी रेडियो का रोल कहाँ आता है? कम्युनिटी रेडियो का रोल यहाँ आता है कि नहीं, अगर एक आपको पता है कि भाई ये एरिया में इतना हजार्ड है,
इतना रिस्क है ना, तो आप उस एरिया में ये बात कर सकते हैं कि को बता सकते हैं बीच बीच में प्रोग्राम करके, किसी एक्सपर्ट को बुला करके, और आप लोगों की कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। आप लोग ये बात बता सकते हैं कि देखो भाई, जो घर बना रहे हो तो एटलीस्ट जो फ्लड लेवल है, जो मार्क हिस्टोरिकली हर एरिया में फ्लड लेवल मार्क्ड होता है, एक पत्थर लगा हुआ होता है, उसे केवल आइडेंटिफाई करना होता है, और नहीं तो जो आपके गांव के पटवारी होते हैं उनको पता होता है कि वो कहाँ पे है, वो बता देते हैं, तो उसके ऊपर घर बनाना होता है। और बाकी चीजें कि चलिए ठीक है कि इंस्टॉल चेक वॉल्स वगैरह ये सब बातें हम लोग कर सकते हैं, जिससे जब बाढ़ आएगा तो जान माल का नुकसान कम से कम होगा। जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, ये बच्चों को ऐसे पढ़ना पड़ रहा है, प्रोबेबली हम लोग इसे रोक सकते हैं, राइट। तो ये कम्युनिटी रेडियो कर सकता है। सेकेंड ये है, मैं बाढ़ को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेडियो चल रहा है और काफी लोग उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बाकी के जो कम्युनिकेशन के साधन थे, जहां से इंफॉर्मेशन मिलता था, वो फ्लड में खत्म हो चुका है। लिसन टू द रेडियो और टेलीविजन फॉर इंफॉर्मेशन इफ वर्किंग, वी अवेयर द फ्लैश फ्लड कैन अकर। फ्लैश फ्लड एक ऐसा फ्लड होता है जो कि सडनली आता है, और आजकल फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लड का जो है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने सिटी तो बनाया है, कंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने किया है, पर हमने अपने जो नेचुरल ड्रेनेज थे उसका रिस्पेक्ट हम लोगों ने नहीं किया, उसका सत्यानाश कर दिया है, जिसके वजह से ये जो अर्बन फ्लड है वो आ रहे हैं। तो करके अगर रेडियो में आपको इंफॉर्मेशन आता है तो मूव इमीडिएटली कि भाई बाढ़ आने वाला है टू हायर ग्राउंड। जो भी मैं बाढ़ का एग्जांपल आपको बताया, तो ये कौन बताएगा, ये आप ही को बताना होगा, क्योंकि हमारा भाषा तो हो सकता है जो लोकल लोग हैं वो नहीं समझे, आपकी भाषा वहां के आप ही शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, वहां के आप ही हैं, आपकी बातों को लोग मानते हैं वहां के लोग, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बनती है कम्युनिटी को रिटर्न देने के लिए। ऐसे ही अगर हमें पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रीम था हिस्टोरिकली, कई बार क्या हो, जो बाड़मेर का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो बाद में ये पता चला कि वहां पे कोई 100-125 साल पहले एक नदी उधर से बहती थी, वो बीच में मर गई, तो लोगों ने उसमें घर और खेत बना लिया, लेकिन फिर जब फ्लड आया तो पानी उसी में से आया, है ना। तो कोई भी अगर वी वेयर ऑफ अ स्ट्रीम ड्रेनेज चैनल एंड अदर एरिया नोन टू फ्लड सडनली, जहां पे बार बार फ्लड आता है, एकदम से पानी बढ़ जाता है, तो ये आप लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अपने रेडियो के थ्रू, कम्युनिटी रेडियो के थ्रू। अच्छा, ये तो मैं एक फ्लड की बात कर रहा हूं, ऐसे ही इसको अदर हजार्ड से भी आप रिप्लिकेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप फायर के बारे में बीच बीच में बात कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि चलो हमारा एरिया ड्राई जोन में है, तो हम लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं कि जब हम अपना घर बना रहे हैं तो उसमें फ्यूल कम से कम ऐड करें। हिस्टोरिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो चाणक्य थे उन्होंने लिखा था कि जब राजा का घर बनाए हम लोग, जो राजा होते थे, क्योंकि उस समय वही सर्वे सर्वा होते थे, तो उन्होंने कहा था कि जब राजा का घर बनाए हम लोग तो कैसे बनाए, तो उन्होंने बोला पहले वुड को जलाओ, लकड़ी को जला दो, कहने का, और जो राख बचता है उस राख से राजा का घर बने, कि ताकि फर्दर वो बर्न नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली राजा के घर से फ्यूल निकाल दिया, तो जलेगा क्या। हम लोग हिस्टोरिकली बहुत ही, अगर और भी देखें, मिथोलॉजिकली भी अगर आप देखें, तो हम लोग पहले से ही डिसास्टर के लिए प्रिपेयर रहते थे। और एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आपने वो महाभारत का केस सुना होगा लक्षागृह का, जिसमें कि वो ऐसा बताया गया है कि कौरवों ने पांडवों को जला करके मारने के लिए लक्षागृह बनाया था, लेकिन उसमें एक सुरंग भी था। तो सुरंग क्या था, बेसिकली हमारे हिसाब से वो एक एग्जिट रूट था, है ना। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि जब भी कोई बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, कोई कॉलेज बना रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 एग्जिट उसमें होना चाहिए, कि किसी कारण से अगर एक एग्जिट आग के वजह से, किसी कोलैप्स की वजह से बंद हो जाए, तो दूसरे एग्जिट से हम लोग निकल सकते हैं।
टू एग्जिट इज ऑलवेज बेटर देन। और पहले भी जो लोग, आप लोग गांव के रहने वाले हैं, आप अपने गांव में देखना, जो पुराने घर होते थे उसमें भी 2 एग्जिट होते थे, एक आगे की तरफ एक पीछे होता था, छोटा होता था, उसे हम लोग खिड़की या कुछ कहा करते थे, घेरवारी, लेकिन एक होता था जिससे कि लोग निकलते थे, क्योंकि उस समय घर में फ्यूल बहुत ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्यूपेशन उस समय फायर, हम लोग फार्मर होते थे, तो किसानों का क्या होता है, पुआल अनाज सब घर में ही होता था, तो फ्यूल ज्यादा होता था, तो बेसिकली दैट वाज द सेकेंड एग्जिट। तो वो हम लोगों ने, उसे हम लोगों को यूज करना चाहिए, और आप लोग इसे अवेयरनेस में फैला सकते हैं। ये आपके थ्रू बेहतर हो सकता है, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसे इस केस में है कि आप बता सकते हैं लोगों को कि जब बाढ़ आने वाला है, हमें पता लग गया है कि अभी 2 घंटे में यहाँ पे पानी भर जाएगा, तो हम लोग जो आउटडोर फर्नीचर का मतलब हुआ कि भाई जो लोहा का जो फर्नीचर होता है या जो धूप पानी से खराब नहीं होता है उसको निकाल ले और उस पर सारा सामान रख दे हम लोग, है ना, और घर से निकलते समय अपने जो मेन स्विच है उसको बंद कर दे। तो ऐसा आप लोग अगर बताएंगे, क्योंकि जिस समय इमरजेंसी में लोग होते हैं, ये रोज का प्रैक्टिस होता है, तब जाकर के आपके बिहेवियर में ये बात आती है। ऐसे ही हम फ्लड का एग्जांपल इसलिए ले रहे कि आप इसे ऐसे ही रिप्लिकेट करते रह सकते हैं, और इसी ऐसे ही आप अर्थक्वेक के लिए कर सकते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि आप बता, लोग ये दीवार जा रही है और वो दीवार से थोड़ा सा इधर वो कैंटिलीवर निकाल करके अगला दीवार इस पर से बना देंगे। तो इतने को लिए तो कोई किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है, कोई भी कह सकता है। और आप लोग भी रेडियो पे बता सकते हैं कि नहीं, जब भी हम घर बनाएं तो पिलर के ऊपर ही पिलर रखे और दीवार के ऊपर ही दीवार रखे, इतना तो कोई भी बता सकता है। ठीक है कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि भाई इसका स्ट्रेंथ इतना है, जैसे जो हम लोग डिस्ट्रक्शन मेथड से बिल्डिंग का स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि ये बिल्डिंग कोलैप्स तो नहीं कर जाएगी। ये थंब रूल है कि जो भी बिल्डिंग 30 ईयर से ओल्ड हो जाता है, स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो लाइफ लाइन बिल्डिंग्स है, तो उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। लेकिन ये है कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी स्टेबिलिटी चेक भी करवाना है। न करवाने वाले को चेक है, न पता है, न करने वाले को पता है। तो होता क्या है, एक दिन बरसात होती है और या कोई फायर होता है तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। अगर हम लोग ऐसा कर सके, हम अवेयर कर सके लोगों को, और बहुत महंगा खर्चा ये सब कराने में भी नहीं है। और आज के तारीख में प्राइवेट में काफी लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट में ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ये सब करते हैं। उससे आप अपनी बिल्डिंग का स्टेबिलिटी चेक करवा सकते हैं, पता लग जाएगा कि हमारी बिल्डिंग में कहाँ कमजोरी है। जैसे हम अपना हेल्थ चेक कराते हैं, तो इस तरह का अवेयरनेस, आप इस तरह की मैसेजिंग आप लोग कम्युनिटी रेडियो के थ्रू और रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, जिसके बेसिस जो मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि इससे काफी रिस्क कम हो जाएगा। एक उदाहरण मैं और देता हूं जिससे कि आप और भी क्लियर हो जाएंगे। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा पुराना मामला नहीं है, कोई 15-17 दिन की ही बात, पहले की बात है। जयपुर की डीएम अपनी बोलेरो में जा रही थी और उन्हें किसी ने बताया, लोगों ने बताया, जो वॉलंटियर्स खड़े थे, कि मैडम ये अंडरपास में आप मत जाइए, राइट। वो बोली कि मेरी बड़ी व्हील की गाड़ी है, पास कर जाएगी, और वो पानी में फिर फंस गया, तैरने लगा, तो उनको गाड़ी के साथ रेस्क्यू करना पड़ा। थंब रूल ये है कि अगर आपके गाड़ी का पहिया आधा पानी में जहां डूबने लगे, आधा, उसके आगे आप गाड़ी मत ले जाइए, राइट। अब ये थंब रूल है, ये कोई भी बता सकता है, आप अपने कम्युनिटी रेडियो के थ्रू लोगों को बता सकते हैं। जब तो कितना रिस्क कम होगा अगर मान लिया ऐसा रेडियो चलता रहता है। ऐसा हो सकता है कि वो जो जयपुर की डीएम थी वो भी गाड़ी उसमें नहीं ले जाती। ऐसे ऐसा बताया गया कि वहां पे वॉलंटियर्स खड़े थे पहले से, सिविल डिफेंस के, उन्होंने बताया कि मैडम आप गाड़ी मत ले जाइए, लेकिन फिर भी वो ले गई और फंस गई, फिर उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। तो ऐसे लोग फंस जाते हैं पानी में, उनकी गाड़ी भी बह जाती है। दूसरा थंब रूल ये है कि अगर पानी बहता हुआ है और 6 इंच से ऊपर बह रहा है तो उसमें ना आपको उतरना है और ना गाड़ी को उतारना है। अगर आप स्विमर नहीं है तो, अगर स्विमर हैं तब तो आप पैदल उससे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विमर नहीं हैं तो 6 इंच से ऊपर के बहते पानी में आप गिर जाएंगे और फिर बह जाएंगे। ये सारी चीजें कौन कैसे ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि
ये बात तय है कि आपकी रीच बहुत ही अच्छी है। भले ही अभी आप 8,000 लोग नहीं, 8,000 स्टेशन नहीं हैं जो कि पूरे भारत को कवर कर ले, लेकिन 400 भी हैं, वो भी काफी हैं। और मुझे ऐसा बताया गया कि एक रेडियो जो कम्युनिटी रेडियो है वो कोई 10 किलोमीटर के रेडियस को कवर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई 50 से 60 गांव उसके जद में आ जाते होंगे, क्योंकि इंडिया ये पॉपुलस कंट्री। तो आप अंदाजा लगा ले कि कितने ज्यादा लोगों को आप बेनिफिट दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप छोटी छोटी चीजों को यूज करके, मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि कम्युनिटी रेडियो से हमें क्या फायदा हुआ, ये मैं आपको एक कि कितना पावरफुल मीन्स है। हम ये पोस्टर स्कूल सेफ्टी पे पोस्टर कंपटीशन हम कराते रहते थे, हर साल हर बार कराते थे। लेकिन आप ये देखिए, हमने जब ये आपके साथ किया, कम्युनिटी रेडियो वालों ने इसका जब प्रचार किया, तो इसमें 6,000 पार्टिसिपेंट आए। ऐसे क्या आते थे 400, 500, 600 आते थे पूरे इंडिया से। लेकिन जब आप लोगों ने इसका प्रचार किया, मुझे आज भी याद है, एक आशा मोरे मैडम है तमिलनाडु की, और ऑब्वियसली महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र से उन्होंने इसका काफी प्रचार किया था। तो 6,000 पार्टिसिपेंट्स आए। अब देखिए उन्होंने 6,000 बच्चों को DRR के बारे में उन्होंने बताया। तो यू आर अ वेरी पावरफुल टूल फॉर DRR, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। मतलब हम लोग डिसास्टर से पहले की बात कर रहे हैं, हालांकि आपकी उपयोगिता डिसास्टर में और डिसास्टर के बाद भी है, लेकिन हम लोग अभी ये कह रहे हैं, ये प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ था कि बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भी आए थे इसमें बात करने के लिए। आप देखें इवन कॉमर्शियल रेडियो के RJ रौनक भी आए, एक बार आए थे इसमें बात कर। ये मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है DRR के लिए, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। आप देखिए हम लोगों ने दिवाली का भी मैसेजिंग किया था, उसमें भी आप लोगों का बहुत ही, जब हम आपके थ्रू गए तो बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला। और रिस्पांस तो क्या, देखिए मैं मानता हूं कि लोग तो चाहते ही हैं करना, लेकिन उनके पास तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं बिना आपके सपोर्ट के। तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप लोगों ने हमें बहुत बढ़िया सपोर्ट किया था लॉकडाउन में, गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचने में। और हम लोग एक एक मिल करके 11 हुए, अब तो हम लोग 111 हैं, तो NIDM भी साथ में आई है। तो हमारे तरफ से मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम ऑलरेडी ले चुका हूं। थोड़ा जो टाइम है उसमें अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आई एम अवेलेबल टू आंसर। कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, और एट द एंड ऑफ प्रोग्राम भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स, अगर आप में से किसी को कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी जानना है, कुछ बात करनी है, तो सर यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे मुखातिब हो सकते हैं। सर ने अभी बहुत सारी चीजें बताई, चाहे वो DRR के लिए हो, किस तरीके से DRR का मतलब क्या है, उसको कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू हेल्प किया जा सकता है उसको रिड्यूस करने में, कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रेंथ कर सकता है रिस्क को डिक्रीज करने में, और क्या क्या किया जा सकता है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शेष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। मैं किसान वाणी सिरोंज रेडियो स्टेशन से हूँ, कम्युनिटी रेडियो से। अपने वक्तव्य के अंत में सर ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के थ्रू लगभग 6,000 पार्टिसिपेंट्स ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, जो कि बहुत सराहनीय कार्य उन्होंने हमारे लिए बताया। तो मेरा आग्रह सिर्फ ये था कि अगर आप एक एप्रिसिएशन मेल कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को लिखते हैं तो हमें, हमारा भी उत्साहवर्धन होगा कि हम लोग और बेहतर तरीके से काम करवाएं। और वो जो एक वर्बल जो बातें होती हैं, अगर वो लिखित में मेल पर आती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से पनवर सर भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि NIDM की तरफ से इस तरीके के कार्यों के लिए, अगर आप आपदा से रिलेटेड कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो जरूर
आपके लिए प्रोत्साहन पत्र या फिर कोई मेरे यहाँ से भेजा जाए, हम इसके लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। धन्यवाद। सर ने Actually, बहुत मेरा उद्देश्य इसमें सिर्फ जी, मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल इसमें ये था कि जिस तरह से आपके विभाग ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की महत्ता को समझा है, उसी तरह बाकी विभाग भी समझें, तो वो जो एक एप्रिसिएशन वाला जो मेल हमारे पास होगा, हम उसके थ्रू दिखा सकते हैं कि देखिए हम संख्या में बहुत कम है, लेकिन हम बहुत बड़ी संख्या को कवर कर सकते हैं। आपके लिए हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपके पोटेंशियल और आपकी क्षमताओं को देख के और समझ के ही हमने सोचा है कि हम इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपके लोगों की क्या कैपेसिटीज है और आप लोग किस हद तक आपदाओं को या फिर उनके न्यूनीकरण में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके के कार्य आप लोगों के द्वारा होते रहे तो हम उसको जरूर आगे बता सकते हैं और उसके लिए आपको कोई ना कोई एक अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भी भेजा जा सकता है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आई थिंक आई एम राइट सर? बिल्कुल सही है। अदरवाइज हम लोग तो ऑलरेडी इनके साथ कर रहे हैं काम। हम लोग तो ज्वाइंटली, कल भी मैं बताया था कि शायद जितेंद्र जी कल नहीं होंगे, आपके कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है विजेंद्र साहब और हम लोग साथ में हम लोग गए थे एनडीएमए को बताने के लिए कि देखिए भाई, कम्युनिटी रेडियो इज ए वेरी पावरफुल टूल, जिसके बेसिस पे वो एग्री हुए हैं कि हम एक एडवाइजरी इशू करेंगे। एनडीए में जो है एग्री हो गया है, एक एडवाइजरी इशू करेंगे। ये गैलेक्सी A50 भी हैंड रेज किए हुए, प्रोबेबली ही वांट टू आस्क समथिंग। गैलेक्सी A50 प्लीज। आई थिंक सर इनका और वो रेडियो मेरठ का वो हैंड रेज सुबह से ही है, तो आई थिंक दैट इज बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं इसे शॉर्ट में कंक्लूड करूं तो सर ने पहले बहुत अच्छी तरीके से डीआर का आरआर के बारे में आप लोगों को समझाया, फिर कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है उसके बारे में बात की। उसके बाद रिस्क जो इंक्रीज होते हैं उनको कैसे कम्युनिटी रेडियो के थ्रू हम डिक्रीज कर सकते हैं उस पर बात की, चाहे वो वार्निंग के थ्रू हो, अवेयरनेस के थ्रू हो, इंफॉर्मेशन देके हो, इन तरीके से कैसे उनको कम किया जा सकता है। उसमें आप लोगों का क्या रोल है, किस तरीके से आप लोग छोटे छोटे तरीके से हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में बताया। क्यों? क्योंकि आप लोग लोकली एक्सेसिबल हो, आप लोग लोकल लैंग्वेज में उनको समझा भी सकते हो। इसके बाद सर ने डिफरेंट अवेयरनेस के बारे में चीजें बताई, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो गया, चाहे वो आपका रिवर बेड में घर बनाने को रिलेटेड हो गया, चाहे वो गाड़ी को निकालने की बात हो गई। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे सर ने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई। तो धन्यवाद सर फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। हमारे दूसरे स्पीकर अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सुबह से ही है, ही इज ए वेरी सिंसियर चैप। ओके तो आई थिंक मेरे पास एक एनआईडीएम की वीडियो है, लेकिन मैं उसे लास्ट में करूंगा, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम सर की भी बात सुन लेते हैं, हम उस लेक्चर को भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो फॉर द नेक्स्ट सेशन आई थिंक आप लोगों को और कुछ नहीं पूछना है। अगर कुछ पूछना है तो सर यही है, अदरवाइज हम लोग इस लेक्चर के बाद भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोगों को कुछ अभी नहीं पूछना है तो हम लोग आगे चलते हैं। हाँ ठीक है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेशन एंड इस सेशन का हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ कम्युनिटी रेडियो इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस टुवर्ड रेजिलियंस बिल्डिंग। केस स्टडी बेस्ड डिस्कशन होगा इसमें। So for this topic, I would like to invite Dr. B.S. Pawar. He is President Radio Community Radio Association India. Dr. Pawar is a PhD in communication with over 37 years of experience working in media and management roles in both public and private sectors undertakings. Dr. Pawar has also served as the Chief of Public Relations and Communication and as the Media Advisory at the Steel Authority of India Limited, SAIL. The Indian Council of Agriculture. सब्जेक्ट फिर से बताइए। ओके सब्जेक्ट मैंने बोला कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है इसका टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिटी रेडियो इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स रेजिलियंस बिल्डिंग केस स्टडीज बेस्ड डिस्कशन। और
आई थिंक कि मैं सर को इंट्रोड्यूस कर रहा था, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। मैं माफी चाहूंगा सर। आई वुड लाइक टू रीइंट्रोड्यूस यू दैट कि डॉक्टर पवार, ही इज अ PhD in communication with over 37 years of experience in media and management roles in both public and private sectors. Sir has served as the chief of public relations and communications, as the media advisor at the SAIL and the ICAR, Indian Council of Agricultural Research, and the Planning Commission of India also. Since the last decade, he is involved in the establishing and managing a group of educational institutions with the eventual goal of fostering a holistic education in the field of mass communication and liberal arts for the deprived section of the society. So I think he is doing a great job, and I would like to welcome Dr. B.S. Pawar sir for the next lecture. I hope sir is with us. Over to you, sir. गुड आफ्टरनून आपको द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने परिचय दिया। मैं तो मुझे लगता है कि मेरे साथी हैं सब लोग, पिछले बहुत सालों से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, नॉर्थ जोन फॉर सॉल्यूशन की टीम और सारे मिलके, और NIDM हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम सब लोग जो है एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी बहुत धन्यवाद एक परिचय देने के लिए। तो मैं सबको आफ्टरनून बोलता हूँ, और मैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे साथ जुड़े हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं, वो स्टेशंस भी हैं, तो आई वुड लाइक टू स्पीक मिक्स्ड लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो my regards to all of you. To start with, the team of NIDM, team of Zone 4 Solution, निकुल जी और उनके साथी। धर्मवीर प्लीज आप बाकी सब लोगों का माइक म्यूट कर दीजिए, क्योंकि एक दो लोगों का और माइक ऑन है, जिसकी वजह से सर की आवाज बीच में कट रही है। तो जैसे रेडियो टाइम 90.8 FM सागर MP, इनका माइक ऑन है, तो इस तरीके से आप इन लोगों का माइक जरा म्यूट कर देंगे तो सर की आवाज ज्यादा क्लियर आएगी। देखिए, ये एक हमारा एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम। वी आर ऑल वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल and we are discussing a very important area, and it is mutually beneficial for all of us, so we should follow that discipline. All these things should not be repeated, and I mean, we should have a disciplined approach. So thank you, all of you. So first of all, I would like to thank NIDM and North Zone 4 Solution for taking all these initiatives. As you all know, since last 3 years, we are working on this project. We started, as Nakul ji has told time and again, जैसे कि नकुल जी ने भी समय समय पर जो है इस बात की चर्चा की है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो हम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम जो है, ये अब NIDM के साथ जुड़कर 3 दिन का ये हमने ऑनलाइन सेशन किया है, तो जिसमें सर्टिफिकेट भी मिलेंगे आप सब लोगों को। तो ये सब जो है ये 3 साल की प्रक्रिया है। It has been, you see, the events have been happening since last 3 years. We started just before the COVID, and this particular issue was flagged by Nakul ji, and the CRA appreciated it, because this is an area which is very important. We have some common hazards. We have some specific hazards that is based on geographical conditions, on topography of our country, a very diversified country in terms of culture, in terms of logistics and demography. So we have these issues keep on cropping up every year, year after years. And pandemic has been, this COVID-19 has been very strong influence on all of us in our everyday life. So this is another hazard which has come. So all these things with the kind of population which we have, it is obvious that we are going to face these hazards, natural disasters.
जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो देश है ये बहुत ही विभिन्नताओं का देश है, कल्चर के हिसाब से भी, और जनसंख्या जो है हमारी सबसे ज्यादा है, अब चाइना को भी हम पार करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, इतने कम संसाधनों में बहुत सारी समस्याओं को हमको देखना होता है। तो सरकार के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, और इंडिविजुअली जो हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो भी प्रेशर में रहती है, और हम इंडिविजुअली हमारी कम्युनिटीज भी प्रेशर में रहती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो आपदा जो है इसको कैसे हम इसको कम कर सके, और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकें, और इससे कैसे निपट सके, इसके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी था। तो नकुल जी जब साथ आए तो हमने भी इसको अप्रिशिएट किया, सीआरए ने भी, और हमने एक संकल्प लिया कि हम इसको एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क में इसको लाएंगे, क्योंकि कोई भी काम वन शुड थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स. You should, because if something is ingrained in the national framework, the national policy framework, so the people may change. The association, office bearer of the association may change. CRA, somebody else may take over maybe after 6 months, and maybe Nikul Saab may go somewhere else, and then you see other people may take up the issue. So it is like it should be a continuous process. So developed countries are developed because they have processes in place. जो हमारे विकसित मुल्क हैं वो इसलिए विकसित हैं क्योंकि वहाँ एक प्रोसेस है। कोई भी चीज जब शुरू होती है तो वो बराबर चलती है, कोई भी सरकार आती है, कोई भी लोग बदलते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है आगे, जो विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो जो है वो इफेक्ट नहीं होता है, उस पर असर नहीं पड़ता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम जिग-जैग तरीके से हम चलते हैं। तो हमारी जो सोच थी, our thought process was to have a policy framework. एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हो जाए, एक चीज हमारे देश की जो हमारे राष्ट्रीय स्तर में वो पॉलिसी में आ जाए, और उसके बाद फिर जो भी लोग आगे आएंगे वो जब पॉलिसी फ्रेमवर्क में, जब कम्युनिटी रेडियो और उनका रोल डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन में जब ये एक पॉलिसी में आ जाएगा तो फिर चीजें आगे बढ़ेगी। तो इस बात को लेकर हम बड़े क्लियर थे, and we organized 3 zonal workshops depending upon the topographical conditions of the particular region. So we took the regions, the coastal belt in one zone, and the another one was the Himalayan range, and the third one was the plains and the arid zone. So that way we divided the entire country in 3 zones, and we ensured that we had threadbare discussion on these issues, on the role of community radio in disaster management and mitigation. So that exercise we did, and we got a lot of good feedback from there. Zone 4 Solution did a wonderful job in this direction. They even opened up their website for suggestions, and we got plenty of good suggestions. So हमने जो है 3 zones में divide किया पूरे देश को, और वो डेमोग्राफिक कंडीशंस जो थी, जो आपदा को लेके जो जिस तरह की परिस्थितियां थी जिस इलाके में, उस तरह से उनको हमने बांटा, और बांटकर हमने चर्चाएं की, और वो चर्चाएं जो हैं बहुत हमें काम आई। अब जब हम 2-3 साल तक हम लगे रहे, काफी लोगों ने उसमें ये भी ऐतराज किया कि इनसे क्या होता है, जूम मीटिंग करके क्या निकलता है। तो मैं समझता हूँ जूम मीटिंग ही एक बहुत ही इफेक्टिव एक मीडियम है जिससे बहुत कुछ निकला है। अभी रिसेंटली जो हमने जो मीटिंग की थी 12 अगस्त को, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में NDMA भवन में हुई थी, जिसमें बहुत सीनियर लोग जो हैं फील्ड से आए थे, और उनके साथ हमने डिस्कशन किया। सो it was accepted that the advisory will be released on this, and they have accepted, the highest authority in the home affairs, that we will, in the policy framework, the role of community radios.
Sir, your audio is not coming. I think he is facing some network issue. We should wait 1 minute. Maybe he will continue again. At the same time, we should focus on the We can wait for 1 minute. effective management of coastal resources. Like what उनके नेटवर्क में कुछ परेशानी लग रही है, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो मैं भी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। and finally land use management and structure. Connection. शेष जी, मुझे लगता है कि सबका एक बार जो एडमिन है वहाँ सबका म्यूट कर सकते हैं। सर जब बोलेंगे तो अपना खुद का अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है साइड से। Everything, I think everyone is mute. Sir, you can. सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अभी क्या आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है सर। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे जितने साथी हैं they are all very well experienced and they have handled a lot of projects. There is no dearth of talent in community radios. Community radio जो हमारी हैं across the country, और I am happy to announce that more and more radios are coming up. I think within 1 year we will double our strength. The way the ministry is moving ahead in propagating the radio station concept in the country, and the way the applications are coming, I am in touch with WPC. They have also relaxed many conditions, and we have, the secretary is very positive. The advisor of this WPC, he is also very positive. So we are getting a lot of applications, and the strength of community radios would definitely increase. That is one area which we lag behind, because in a country like India, with such a huge population, with such a diversified society, we need more community radios to represent the entire nation. So we are still working in a very limited area. तो हम जो हैं बहुत सीमित जो है क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुल रेडियो की संख्या जो है करीब 366 है, जिनमें से ऑपरेशनल कितने हैं ये भी थोड़ा सा एक शोध का विषय है। तो संख्या बढ़ रही है आगे आने वाले समय में। तो जब संख्या बढ़ेगी तो हमारी जो पहुंच है वो बढ़ेगी, हमारी रेंज बढ़ेगी, हमारा जो है हमारी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो अब जरूरत क्या है? जरूरत है कि जो ग्रास रूट लेवल से हम काम करें। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। सबसे पहले जो हमारे लोग हैं, कम्युनिटी रेडियो के रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे प्रमोटर्स हैं, जो हमारे मैनेजमेंट के लोग, उनको ये बनना बहुत मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले the first step is to create awareness within ourselves, within the मुझे लगता है कि नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से उनकी आवाज बीच बीच में रुक जाती है। Yes, sir. Yes, sir. काफी दूर है, हम लोग थोड़ा सा क्यों पहाड़ में बैठे हैं। नहीं सर, I think next time he will join, so we would suggest him to switch off his camera. So I think he can speak easily and low bandwidth used. तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देखते हैं एक बार और उनको ज्वाइन करने पे आई विल सजेस्ट कि वो कैमरा ऑफ करेंगे ना तो नेटवर्क का कम लोड पड़ेगा और वो अपनी बात बोल पाएंगे। देखिए अगर हो जाए कि उनका लोकेशन भी ऐसे ही, वो सोलन बैठते हैं ना। हाँ, मुझे तो सब पता है कौन सा कम्युनिटी रेडियो वाले कहाँ हैं, मुझे सब पता है। क्योंकि पीछे हम लोग काफी दिन से साथ में काम कर रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि अगर ये आ जाते हैं तो और इनका माइक एक चल। पवार सर, आई वुड रिक्वेस्ट, पवार सर आप एक काम कीजिए, आप सर आप प्लीज अपना एक बार वीडियो ऑफ कर लीजिए।
वीडियो ऑफ कर दीजिए तो केवल आवाज आएगी, लेकिन आवाज आपकी क्लियर आएगी और आपका नेटवर्क उतना यूज है। अब सर, अब बोलिए सर। बंद कर दिया और अब मैं थोड़ा सा कनेक्शन भी मैंने अपना चेंज कर दिया है, तो अब आपकी आवाज भी क्लियर हो गई है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमको क्या करना होगा, हमको अपने सबसे पहले अपने को तैयार करना होगा इसके लिए, इस चैलेंज के लिए, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क में ये आने वाला है। आने वाले समय में डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज कर रही है, एनजीओ सेक्टर भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, और हर इंसान जो है वो इसकी महत्ता को और जो हम कम्युनिटी में जो हम काम कर रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, हमसे ज्यादा करीब हमारी कम्युनिटी के कोई नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर हमारी पहुंच है, हम वहां पर जो है वी हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द कम्युनिटी एज वेल with the district administration, and we have a good team to work on this in this area. So basically we have to concentrate on capacity building. Capacity building is something very, very important. Until and unless we don't get the right kind of information, the right kind of training, we will not be able to deliver the way we should. So हमें जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की, और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो हमारा सबसे नीचे का लेवल है, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, ब्लॉक लेवल पे, वहां पर हमें जो है हमारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी जो है जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेटअप है, जितनी मैंने जानकारी थोड़ी रिसर्च की इसके बारे में, तो इसका पेनिट्रेशन जो है बिल्कुल विलेज लेवल तक है। तो हमने काफी काम किया है इस फील्ड में। सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सेंटर में तो है ही है, एनडीएमए है, एनआईडीएमए है, इस तरह से हमने अपने एरियाज भी डिवाइड किए हुए हैं। वी हैव डिवाइडेड द एरियाज, एनआईडीएम इज वन एंड एनडीएमए इज अनदर, देन वी हैव स्टेट अथॉरिटीज मैनेजमेंट, दिस disaster management authorities, and we have a district level disaster management authority, which is penetrating to the lowest level, the panchayat level. But the only thing is to get integrated. You see, the setup is there, but we have to, you see, lay out a strategy how to make use of that, the network which we have, the network of community radios across the country, state-wise, district-wise, and how to integrate it with the disaster management. So this area we will cover now, because now the focus is on community radios and its role in the disaster management and mitigation. तो अभी हम जो है फोकस में हैं इस वक्त, तो हमें एक अपने लेवल पे भी, जो हम नेशनल लेवल पे जो हम कर रहे हैं, we are trying to link up with all the national level authorities. At the state level, at the regional level, the vice presidents and the executive committee members of CRA, they should come forward and they should take the messages, whatever we have been doing at the national level, it should penetrate to the regional and the state and district level. We have to show our presence. We are already present in the community, but we have to flag the issue that we can work a lot in disaster management. तो अपने लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे, छोटे से छोटे लेवल पे जहां हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ, Panwa sir, we lost your audio. आई थिंक सर का नेटवर्क फिर से चला गया है। और sir was telling a very important thing, that you are very close to your societies, your communities. As a country, we are known as a subcontinent, not just for we have different languages, we have different cultures, we have also different weathers,
different geographical areas, different terrain. हर इलाके के लोग अलग अलग प्रकार की जलवायु में रह रहे हैं, हर इलाके में अलग अलग प्रकार की आपदाएं भी हो सकता है, कोई बाढ़ से जूझ रहा हो, कहीं सूखा पड़ा हो, कुछ इलाकों में अर्थक्वेक आ रहे हो तो कहीं पे सुनामी आ रही हो या साइक्लोन आ रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज आप लोगों के लिए तो पहले ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आपके इलाके के लोकल हजार्ड्स क्या क्या हैं, संभावित हजार्ड्स जो एक खतरे या डिजास्टर के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। और सर ने बोला कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तो जब हमें पता चलेगा तभी जब उसके बारे में आप लोग कुछ कर पाएंगे, या फिर उसके बारे में जब आप लोगों को जानकारी होगी तभी आप उसके बारे में पढ़ पाएंगे और लोगों को भी बता पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऑल कम्युनिटी रेडियो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, and they are interested in disaster risk reduction, so they should know about their local hazards, what are their local hazards, and how then they can learn or understand what they can do to prevent them or mitigate them. Like I think I have now 158 participants, and I hope you are from all around the India. Like I would like to talk few of you. कोई बात करना चाहेगा? Anyone? श्रेयस जी सर। बेटर है कि जैसे हाँ कोई बोल रही है। Yes. Sir, namaste. I'm Satya from Radio Ala, Andhra Pradesh, Telugu CR. Okay. You are asking Hello, Satya. about. Yes, sir. Hello, Yes. sir. Happy to see you. Your face always smiling. It's very nice. Can you yes, can you put on your camera? Sir, definitely, sir. But 2 minutes. Okay. I'm not expected to you asking question. That's why I came out for signal. This online meeting, online classes have given us freedom कि हम कैसे भी हैं और attend कर लेते हैं। Yes, sir, definitely. Because for catching my signal, I went to my corner, sir. That's why. Okay. Yes, sir. Because if we see you, then the discussion will be more live. Yes, sir. Definitely. Yes, sir. Sir, and you asking, I want to say you one thing, that is presently we are broadcasting information. We are getting from Inquest Hyderabad. They are giving weather conditions and fishing potentiality and air information, etc., and sea level information, etc. So presently we are broadcasting that information only. And local, whenever the heavy floods or etc., then the municipal commissioner will give their voices, and we are broadcasting, and where are the shelters and what are the facilities providing by the local government. We are announcing those information only. Yes, sir. So this is something you are passing the information which you receive from the government, and you are passing it to the community. Yes, sir. Yes, sir. That is one thing. Okay. It is, I was saying that suppose if there is any flood, or is there any cyclone, you are from Andhra, I think there are other hazards also. Our radio station is situated nearby 3-4 kilometers from sea level. Okay, great. Yeah, so I think you should also tell them if that situation is coming. Yes. So what should you do and what should you don't? That is. Yes, sir. We established in 2013. From that day till we are continuously broadcasting, not only at the time of heavy rains or floods or etc. Before due to the language problem, I'm not expressing more. Preparedness and what about before the floods or after, how we get on and how we protect ourselves. The entire jingles are continuously broadcasting on our radio for awareness only, sir. And at the time of the dangerous situation, we are connecting with the authorities and working with them. Yes, sir. Yes, sir. ये मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ, ये लोग सब लोग बहुत बढ़िया ऑलरेडी डिसास्टर के इंफॉर्मेशन को
शेयर कर रहे हैं ग्राउंड पे। केवल प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं उसमें काफी दिन से लगा हुआ हूं, तो क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी जो है वो सही यूज नहीं होती है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड इन डिसास्टर मैनेजमेंट, अदरवाइज दे आर डूइंग वेरी गुड। मेरे हिसाब से ग्राउंड पे अगर कोई काम हो रहा है, जो हवा, देखिए जो बात यहाँ दिल्ली में बैठ के होती है, उसका कुछ भी फर्क नहीं कोसी के फ्लड पे पड़ना है ना। वो जो फ्लड होता है वो अलग ही होता है। तो वैसे ही है, ये लोग अपने जो कम्युनिटी रेडियो जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात मैं आपको ये बताता हूँ, इनका प्रभाव जो है उस एरिया में, जो एक आरजे होता है, जैसे मैं आपको सुबह भी एक नाम बताया था, अगर आशा मोरे हो तो उनको बुलाइए। वो एक कम्युनिटी को स्कूल सेफ्टी के लिए वो कर रहे थे, और मैंने ये नोट किया कि वो अपने जहाँ पे वो काम करती हैं, वहाँ के लोग उनको मतलब नरेंद्र मोदी से कम नहीं समझते उनकी आवाज को, मतलब इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे हाँ, एक यहाँ भिवानी में आशीष करके थे, मैं उनका भी देखा कि बहुत, तो जिन लोगों से, किसान रेडियो था गोरखपुर में, मुझे अभी भी अरुल या नाम सबका भूल गया हूँ, तो ये लोग कर रहे हैं। बस केवल क्या है, टर्मिनोलॉजी का प्रॉब्लम है, अदरवाइज दे आर शेयरिंग वेरी गुड इंफॉर्मेशन। ये कोई वीडियो शेयर कर दिया है धर्मवीर जी, प्लीज अशोक धिंगरा का माइक करें, थैंक यू। तो आशा मोरे जी, आप हैं क्या ऑनलाइन? है सर, हूँ सर। नमस्कार, मैं आशा मोरे हूँ, महाराष्ट्र बारामती से। हमारा रेडियो 18 साल से काम कर रहा है। अभी नकुल सर ने कुछ ज्यादा ही मेरे लिए मेरे बारे में बोला है। नकुल सर के साथ मैंने दिवाली के डोंट और डूज के लिए हमने नकुल सर का इंटरव्यू ट्रांसमिट किया था, और स्कूल डिजास्टर का ड्राइंग कंपटीशन में प्रसार प्रचार के लिए अच्छे से काम किया था। हमें इसका सर्टिफिकेट भी मिला है। उस वक्त मुझे पता चला कि पेरेंट्स को बहुत सी बातें इसके बारे में पता नहीं थी। कुछ मॉक ड्रिल वगैरह जो होते हैं स्कूलों में, इसके बारे में हमने प्रेस रिलीज भी किया था, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसके जरिए हमें रिप्रेजेंटेशन हुआ था। तो हमने ये बहुत सारा कवर किया था। तो उसके लिए मैं NIDM के सर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम। सर, जैसा अभी आपने बोला, और कल भी शायद किसी ने पूछा था कि अगर ये जो चीजें हैं, जैसे मैम ने बोला कि सर के साथ मिलके एक मैसेज हमने सेंड किया था कि दिवाली पे क्या करें और क्या ना करें, तो कल भी किसी ने पूछा था कि क्या ऐसे IAC मटेरियल हमको कहाँ मिलेंगे, कि ठीक है हमको पता तो है कि ये चीज आने वाली है, कि उसमें क्या करना है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि NIDM की वेबसाइट पे और NDMA की वेबसाइट पे, अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, तो इस तरीके के IAC मटेरियल्स पड़े हुए हैं। आप इनको और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में इनको रखा गया है, जो आसानी से आप अपने समुदाय के लोगों को समझा सकते हैं। यू कैन फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन टू योर कम्युनिटी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, देयर इज नो इशू। सो लाइक this is for the do's and don'ts for common disasters. This is created by NIDM, like flood. This is for flood. What is the safety tips? This is for cyclone. This is for fire. So there are a lot of IAC material available. You can see on the NIDM website. If you people ask, I can share the link also in the chat box. I know सभी भारत के विभिन्न कोनों से हैं, और सब अलग अलग प्रकार के आपदाओं को झेलते हैं। हो सकता है कि सब एक ही आपदा को ना झेलते हैं, तो अपने इलाके की आपदा के हिसाब से इन चीजों को वहां पे प्रेषित कर सकते हैं। लाइक स्कूल, अभी मैम ने बात की स्कूल के बारे में, तो दिस इज अबाउट द फायर सेफ्टी ऑफ स्कूल, कि क्या करना चाहिए, किस तरीके की चीजें होनी चाहिए। असेंबलिंग द डेजिग्नेटेड प्लेस, कहाँ पे सबको इकट्ठा होना है पता होना चाहिए। फायर हेल्प के लिए आवाज लगे, या हूटर हो या फिर रिंग बजने का, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अलार्म बेल की। इवैक्यूएशन साइट सही होना चाहिए, वो मतलब उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए, लोगों को निकलने का रास्ता उनको पता होना चाहिए, कहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए उनको पता, कहाँ पे इकट्ठा होना है उनको पता होना चाहिए। किस तरीके से अगर कोई घायल हो जाता है, किसी को कोई इंजरी होती है, तो उसको किस तरीके से रिलीफ करना है, कैसे उसको रेस्क्यू करना है,
तो इस तरीके की चीजें स्कूल के अंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब उसमें क्या क्या बता सकते हैं, स्कूल में फायर सेफ्टी के क्या टिप्स हैं, और अगर फायर लगता है तो क्या करना है, किसी को फायर हो जाता है, किसी का माइक से आवाज मेरी ही डबल होके आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर कोई इमरजेंसी है तो हमें किसे फोन करना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे आईएससी मटेरियल डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे एनडीएमए और एनआईडीएम दोनों की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी इनको जानकारी आप लेके आप अपने लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। हाँ द्विवेदी जी, मैं एक सजेशन मेरा है कि ये इतना यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आईईसी में बहुत मेहनत करके ये इकट्ठा होता है मटेरियल, और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये सारी। इसको अगर हम एनआईडीएम का या एनडीएम में जो भी जिसका भी ये जुरिस्डिक्शन आता है, जिसमें भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारा मटेरियल भिजवाया जाए, और एक पर्टिकुलर मास्टर ट्रेनर वहाँ हो जिले में, जो कम्युनिटी रेडियोज के साथ सेशन लें कैपेसिटी बिल्डिंग के, और ये सारे इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए जाएं। आईईसी का जो मटेरियल है अदरवाइज एक्सेसिबल तो है, ये वेबसाइट पे मिल भी जाएगा, मगर हमारे लोगों के पास इतना समय नहीं होता है क्योंकि स्टाफ कम है और काम बहुत रहता है करने के लिए। तो अगर एक बार जो है वो ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जिले में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेटअप है वहाँ मास्टर ट्रेनर भी है, मैं सोलन में हूँ तो यहाँ हैं ऑलरेडी, मगर वो फिर कितना काम कर पाते हैं वो उनके साथ टच में हम आए शुरू में, मगर बाद में वो फिर एक झटके में काम हुआ, उसके बाद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये थोड़ा सा एक मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें बहुत सारे रेडियो स्टेशंस ने वो रेडियो क्लब्स बनाए हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी रेडियो क्लब्स बने हुए हैं। तो ऐसे उनको हम जब मटेरियल हमारे पास होगा तो हम उनके साथ शेयर करेंगे, उनको भी बताएंगे, और फिर इसको अपने प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, इस पे एक्सपर्ट्स को भी उसमें लेंगे। ये थोड़ा सा ये इस आउटकम निकलना चाहिए इस हमारी 3 दिन की जूम मीटिंग्स का, कि कुछ एक हम ग्राउंड लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, जो चीजें यहाँ डिस्कस हुई हैं उसको कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक सर, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे आज अभी जब प्रोग्राम चल रहा है तो हमारे पास 170-180 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हम इससे डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह करेंगे तो ये बहुत ही मतलब वास्ट हो जाएगा, और आई डोंट थिंक कि हम इसे कवर कर पाएंगे इतना ज्यादा, क्यों एज अ सेंट्रल एंड नोडल एजेंसी हम अकेले हैं, और हमारे लिए इतना ज्यादा क्राउड कवर करना बड़ा मुश्किल है। इसके सॉल्यूशंस कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजना है आपने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी को, और इनको जो है ये मटेरियल आईसी मटेरियल चला जाए और एक लेटर के साथ इनको इंस्ट्रक्शन चली जाए कि वो लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करें लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सिर्फ इतना ही काम अगर आप करेंगे, चिट्ठी चली जाएगी वहां से, तो बाकी हम फॉलो अप कर लेंगे, हम अपने लेवल पे फॉलो अप कर लेंगे हमारे रेडियो स्टेशन। श्रेयस जी सर, हम लोग इसमें ये भले कर सकते हैं कि जैसे ये समझते हैं कि भाई एनआईडीएम इनका देखिए, जो अभी आपने कहा ना कि मटेरियल अवेलेबल है, तो मटेरियल का इंटरप्रिटेशन जो है वो इवन मैंने देखा है स्कूलों में कि 99% गलत ही होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, ये मटेरियल पहले से अवेलेबल है। उदाहरण के लिए उसमें लिखा हुआ है कि आपको इवैक्यूएशन मैप बनाना है, और मोस्ट ऑफ लोग जो हैं आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्योंकि स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इवैक्यूएशन मैप मिलता है लगा हुआ दीवारों पे, लेकिन वो क्या है, कागज पे बना के लगा देते हैं, पेंसिल लेते हैं या कंप्यूटर से प्रिंट करवाते हैं, कंप्यूटर हो गया, अदरवाइज पहले बड़े पेपर पे पेंसिल से या पेन से बना के लगा देते थे। देखिए ये इंटरप्रिटेशन है, ये की कमी है कि होना चाहिए वो जो मैप है वो ऐसा मैप होना चाहिए जो आग लगने पे जो धुआं हो जाता है तो अंधेरे में भी दिखे, उसको सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप बोलते हैं। तो ये जब तक कोई आदमी इनको, जो विजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, पवार साहब जो कह रहे हैं, हमें जब तक कोई सही से इंटरप्रेट करके नहीं बताएगा तब तक देयर इज 99% चांस कि, क्योंकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं तो आप पढ़ के समझ जाते हैं उस चीज को,
और आप अपने आप ही एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के नहीं हैं वो उसका भाव तो समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लाइफ सेविंग स्किल है, ये लाइफ से रिलेटेड चीज है, अगर थोड़ा सा भी गलत समझे तो उसका बहुत ही बड़ा गलत हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग ये भले कर सकते हैं, कल भी बात हो रही थी और आज भी बात करते हैं उस मुद्दे पे कि हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने भी पीछे क्या किया था कि जो 6 जोन हैं कम्युनिटी रेडियो के 6 जोन है ना, तो हम लोगों ने क्या किया था कि कॉमन डिजास्टर वाले जोन को मिला करके और 3 जोन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 6 जोन को 3 बार बुलाया अलग अलग। और उस पे हम लोगों ने, क्योंकि देखिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की अपनी लिमिटेशन है, जिसमें कि आप कंसेप्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन हैंड ऑन एक्सपीरियंस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है ऑनलाइन ट्रेनिंग की, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फेस टू फेस इन पर्सन हम लोग 3 कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि ठीक है कि 100% जो कम्युनिटी रेडियो वाले लोग हैं वहां तक हो सकता है कि हमारा जो मैसेज है वो करेक्ट फॉर्म में नहीं पहुंचे, लेकिन ये भी है कि अगर 3 हम कर देते तो कितने हैं टोटल, 300-400 रेडियो स्टेशन है, 100 भी अगर 3 जगह आ गए तो काम हो गया। तो क्या होगा कि काफी कवर हो जाएगा। तो ये एक मेथड हो सकता है, बजाय इसके कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जा नहीं सकते और हर डिस्ट्रिक्ट पे जाके पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में गए और वहां पे क्या है, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कि 2-2 कम्युनिटी रेडियो है ना। एग्जैक्टली सर, दैट इज व्हाट माय कंसर्न। और जो विजेंद्र सिंह साहब कह रहे हैं ना कि डीडीएम में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज भी काफी वीक है, क्योंकि हम ग्राउंड पे है। वो लकी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक डीपीओ एक पीसी है, बाकी जगह तो वो भी नहीं है। फैक्ट यही है, हम लोग भले जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि एक्ट है ये है, लेकिन फैक्ट ये है कि ह्यूमन पावर नहीं है, और चाहे जो है भी वो एडिशनल है, इंचार्ज है बेसिकली, कि भाई कोई चीज देख रहा था उसे ये भी काम दे दिया साथ में कि तू भी कर लो, तो उसके लिए एडिशनल चार्ज है। तो देखिए जो कोई भी चीज क्या होता है, जब आप डेडिकेटली कुछ नहीं करते तो फिर वो भी ऐसे ही उसका रिजल्ट भी जो है वो हम ही लोगों को लीड लेना चाहिए। जैसे हमें जब फील हुआ था, हमें ये फील कोई 2-2.5 साल पहले हुआ था कि कम्युनिटी रेडियो को हम अपने साथ हम दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, जिससे कि मेरा मैसेज ही गांव-गांव तक पहुंचे। और इतना बड़ा, मैं आज भी कह रहा हूं, किसी भी चैनल से ज्यादा पावरफुल ये कम्युनिटी रेडियो है, क्योंकि जिनको जरूरत है उनके तक ये मैसेज पहुंचाता है। दिल्ली में तो क्या है, मोस्ट ऑफ एफ्लुएंट पीपल है, पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे भी वेबसाइट पे इंग्लिश में पढ़ के निकाल लेंगे, उनका क्या, जो बिहार झारखंड के गांवों में है उनका क्या होगा। तो हम लोगों को उस लास्ट आदमी के बारे में सोचना चाहिए, हु इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट डिस्ट्रिक्ट, और जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट के लास्ट गांव में नदी के किनारे रह रहा है उसको कौन बताएगा। वो हमारी जिम्मेवारी है, हम लोग को उससे बचना नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, आप अगर हो सके कि हम 3 कर लेते हैं और 3 रीजन में कर करके उसमें 100 लोगों को बुला लेते हैं, 300 लोग तो होंगे कम से कम, फिर वो आगे फर्दर डिसिमिनेट कर सकते हैं। और उनको हम लोग फिर बार बार ये भी कर सकते हैं फ्यूचर में कि जैसे एक बार आपने कराया 100 लोग हुए, उनको 2-3 बार करा दीजिए, वो मास्टर ट्रेनर हो जाएंगे बाकी कम्युनिटी रेडियो के लिए। सर एक ये भी तरीका है कि अगर ये लोग यहाँ आ सकें दिल्ली, अगर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है, और हम इनको बकायदा 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग दे सकते हैं अगर ये आएंगे। हमारे पास सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। और हम इनको सारी, हाँ जी सर। सर मैं आपके साथ ही हूँ, मैं थोड़ा फील्ड में निकला हुआ था जी, कोई बात नहीं सर, बाकी क्लास चल रही है मेरी ऑनलाइन। ओके सर, माइक आप अपना म्यूट कर दीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप सुनते रहें एज अ रेडियो हम लोगों को। थैंक यू सर। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना सर कि इनको, अगर ये लोग आ सके तो हम इनको एक जगह पे ही एक्यूमुलेट करके, क्योंकि हम इनको यहाँ रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी दे सकते हैं और उसके बाद इनको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा डिटेल या बहुत ज्यादा साइंटिफिक इनको जाने की भी जरूरत नहीं है, हमको इनको सारी चीजों की बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे जो इनको आम जनता तक पहुंचानी है। तो अगर इस तरीके से भी हम चाहें तो हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब 2 अरेंजमेंट हो सकता है, एक तो कि हम इनके पास जाएं,
है ना, या दूसरा तो अरेंजमेंट हमारे पास आए। तो इन दोनों मुद्दों पे हम लोग जो बात बेस्ट कर ऑप्शन सकते होता है इनसे पनवार साहब से उस पर बात कर लेंगे, Yes, और बात करके जो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जो बीमार है ना, उसको फायदा होना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बाकी चीजें मेरे लिए यूजलेस है। बीमार तो मैं हूं और दवाई आप सांप को खिला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। तो ऐसे जो आरजे है बेसिकली जिसने रेडियो पे बात करना है उसको बताया जाए, उसको ट्रेन किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप लोग बात करें, और भी कुछ है तो मुझे बताएं, मैं कहूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ना, तो वो यही है कि जब तक हम कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे ना अपने लोगों की, ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने कैंपस में, अगर दिल्ली में बुला लेंगे तो ग्रुप्स में बुला लीजिए और उनको बहुत सारा मटेरियल उनके लिए तैयार कर लीजिए, कंटेंट्स जो हैं, तो थोड़े समय में उनको बेसिक बातें पता चल जाए, बाकी उनको आप एक सप्लीमेंट्री मटेरियल दे दें जो कि हर रेडियो स्टेशन में अवेलेबल हो। तो इस तरह से जब तक हम इस लेवल से काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक ये बातें ही रहेंगी। मेरा कहना ये है कि एक शुरुआत होनी चाहिए। धन्यवाद। इसका कोई बेटर सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे विजेंद्र साहब, और 100% निकालेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अब आगे का और क्या है वो श्रेयास? अचानक से कैसे, ये मुझे लगा क्या हो गया ये। ये ऑनलाइन सिस्टम का अपना ही प्रॉब्लम है। हाँ। तो मैंने वही कहा सर कि इसको हम डिस्कस कर सकते हैं फर्दर। बोथ वे, जो जैसे भी ठीक लगे, कुछ आ करके कुछ जा करके, जैसे भी करके आइडिया इसकी जो हमारे रेडियो स्टेशन जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं सीआरए के मेंबर्स हैं और बाकी लोग हैं हमारे, जी सर, हो सकती है तो बिल्कुल हम उनको भी सुनना चाहेंगे बोलने के लिए। तो मैंने उनको कब से बोल रखा है, ऐसे तो ये रेडियो पे इतना बोलते हैं, आज कोई सामने ही नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। And I'm sorry, Ashok Arunachalam sir. Actually, there is a issue. Some people only understand English, some people only understand Hindi. So, I'm sorry to you. हम कुछ समय हिंदी बोल लेते हैं, sometimes we speak in English, and I hope हमें ऐसे मैनेज करना पड़ेगा इसको. Anyone here who want to say anything or share anything? ये एक रेडियो मंजीरा है, रेडियो मंजीरा, अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज। I want to know कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना सर कि हम ये कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या किसी इसमें से जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या किसी ने इस तरीके का कोई इंसिडेंट परफॉर्म किया है पहले? लाइक इफ देयर इज सम डिजास्टर्स, डज ही प्रोवाइडेड सम इंफॉर्मेशंस, सम सजेशंस एंड अवेयरनेस अबाउट दैट? अगर किसी ने किया है तो आई वुड लाइक टू लिसन हिम कि कैसे किया है और क्या किया है। एनीवन? यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी। एक तो उनको मैं खुद भी सुना था, ये क्या नाम था, ये उत्तराखंड के हैं वो, रेडियो क्या बोलते हैं उसे, एक नदी के नाम पे है वो, उनको मैं खुद सुना था। मंदाकिनी की आवाज, मंदाकिनी की आवाज, उन्होंने अपना रोल अदा किया था काफी, और जो साहब का आवाज आता था वो। कोस्टल एरिया के रेडियोज ने भी, इवन उड़ीसा के रेडियोज ने भी बहुत काम किया है। तो सभी ये तो करते हैं श्रेयस, वो अलग बात है कि उनका अपना तरीका है करने के लिए, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मैं एक वहाँ यूपी में का एक कम्युनिटी रेडियो पे किसी आरजे को बात करते सुना था, उसका कि जब रोल ऑफ वैक्सीनेशन चल रहा था ना, रोलिंग ऑफ वैक्सीनेशन, तो अपने भाषा में बहुत बढ़िया बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपने, हाँ वो तब था कि जो वैक्सीनेशन लगा लिया और मास्क अब लगाएं कि नहीं लगाएं, तो उसका बहुत बढ़िया वो जवाब दे रहे थे। मैं
क्योंकि काफी कम्युनिटी रेडियो वाले, तो मैं नाम भूल गया, उसमें से कह रहे थे कि आपने अब वैक्सीनेशन लगा लिया तो कोई अमर थोड़ी न हो गए हैं आप, वो अपने भाषा में उसको कह रहे थे कि आपने वैक्सीन लगवा लिया तो अमर थोड़ी न हो गए आप मास्क लगाइए। तो यही बात जब वो अपने भाषा में कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और जो कहने का तरीका था और टोन और टंग वो बिल्कुल सही जा रहा था। और इसीलिए मतलब तनुश्री का कल मैंने एक लाइन और भी सुना था, वो कल कह रही थी डॉक्टर तनुश्री कि रेडियो कम्युनिटी रेडियो इज ए टूल फॉर सोशल चेंज, मतलब इतना पावरफुल है जो कि चेंज ला सकता है। तो ये करते रहते हैं ये लोग। अब केवल ये है कि हम लोगों को जो अपने लेवल पे में होता है कि ये सब आइसोलेशन में अलग अलग सेल में काम कर रहे हैं, हम लोगों का आइडिया ये है कि भाई वो जो सेल है वो एक बड़ा रिंग बन जाए और उसमें कहीं हम भी हों, राइट, कि जिससे कि हम इनका हाथ पकड़े हुए हों और ये हमारा हाथ पकड़े हुए हों। तो बिकॉज जब तक हम लोग सब कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस डिजास्टर को डिफीट नहीं कर सकते। मुद्दा ये है। नमस्कार सर। मैं सौरभ खान बोल रहा हूँ रेडियो मेवात से। और अभी जब मैं कोविड की अगर हम बात करें तो रेडियो मेवात का लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो सर यहाँ पे हमारे यहाँ इलाके में रहा कि लोग ये नहीं मानने को तैयार थे कि कोविड कोई बीमारी है। सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए ये रहा। दूसरी जगह दूसरे तरीके के चैलेंज रहे होंगे कि लोग कोविड से बचाव की बात कर रहे थे या मास्क की बात कर रहे। सबसे पहला चैलेंज हमारा ये रहा कि लोगों को हमें ये बताना ही एक चैलेंज रहा कि कोविड एक बीमारी है और इससे आपको बचाव करना है। फिर जब मास्क की बात आई तो सर यहाँ मास्क बिल्कुल लोग नहीं लगाते थे। उसके लिए रेडियो मेवात ने एक अपनी मुहिम चलाई और हमने लगभग 60,000 मास्क बनवाए। और जो ये महिलाएं थी लॉकडाउन के दौरान, उन महिलाओं के द्वारा वो मास्क बनवाए गए। उससे हमने महिलाओं को एक रोजगार दिया और लोगों को फ्री में पंचायत के माध्यम, आंगनवाड़ी वर्कर और इन सब के माध्यम से हमने वो मास्क डिवाइड किए कि उससे एक पर्पज ये भी था कि उनको मास्क भी मिले और वो बीमारी से बचें और वो मास्क की अहमियत को समझें। तो इस तरीके से पूरी मुहिम रेडियो मेवात ने पूरे इसमें चलाई। जब वैक्सीनेशन की बात आई तो सर उसमें भी एक बड़ा वो रहा कि लोगों में एक वो रूमर था कि वैक्सीन लगने से बांझपन आ जाएगा। हमारे यहाँ पे पूरा ग्रामीण इलाका है और मुस्लिम बाहुल इलाका ये टोटली हमारे यहाँ पे, तो ये था कि बांझपन आ जाएगा, उसके बाद 5 साल में धीरे धीरे मर जाएंगे। तो उसके लिए हमने एक प्लानिंग किया कि जिन लोगों ने पहले वैक्सीन लगवाया उनको हम रेडियो तक लेके आए, उनकी आवाज को रेडियो तक लेके आए। तब जाके लोगों की समझ में आने लगा कि हाँ, अगर उसने वैक्सीन लगवाया, मेरी पड़ोसी ने लगवाया, मेरे मोहल्ले के लोग ने लगवाया, अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। और तब जाके मतलब लोग वैक्सीन की तरफ आए। जब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छांटा गया था पूरे देश में कि वैक्सीन में पीछे हैं, और हमारे जो जिले के डीसी हैं उनके साथ खुद प्रधानमंत्री जी ने भी बात की थी कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने सारी एनजीओ को वहां पे लाए और रेडियो मेवात को उन्होंने एक फ्रंट लाइन वर्कर की तरह इस्तेमाल किए। खुद डीसी साहब ने 4 बार धार्मिक गुरुओं के साथ और यहाँ पे आके पैनल डिस्कशन वगैरह किया और फिर हम वैक्सीन में आगे बढ़े। So you played a great role in COVID vaccination. Yes, इस तरीके की चीजें ये केवल एक केस नहीं है, क्योंकि हम लोग मतलब हमारी जो जोन 4 सॉल्यूशन की जो टीम है उस समय हम काम कर रहे थे इनके साथ, इसलिए उसी दौरान हमें पता लगा। फैक्ट ये है कि हमने पढ़ाई में पढ़ा था, जब मैं MBA कर रहा था तब पढ़ा था कम्युनिटी रेडियो कि बड़ा पावरफुल टूल है, लेकिन कभी उसका यूज नहीं हुआ था डिजास्टर में मेरे तरफ से। तो ये मुझे तब समझ में आया जब मैं 2 सेकंड और लेता हूँ। हुआ यूं कि एकदम से लॉकडाउन हो गया और हमारी पूरी टीम 98 लोगों की टीम है हमारी, जो ग्राउंड पे काम करती है। अलग अलग, कोई कहीं स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई कहीं किसी कंपनी में एज ERT काम कर रहा है। एकदम से सब घर में बैठ गए और हमारे पास कुछ करने के लिए था ही नहीं एक दिन। अच्छा, और मजेदार बात ये कि हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग थे, हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन कितने दिन तक रहेगा। वो अलग बात है कि मैं उस पूरे लॉकडाउन में भी मुझे फ्रीडम था घूमने का, मैं घूमता ही रहा। तो हुआ यूं कि हमें हमारे लोगों को जो काम हम कर रहे थे जैसे अवेयरनेस का या ट्रेनिंग का, वो कर नहीं पा रहे थे। देन वी ट्राइड कि चलो ठीक है ऑनलाइन करते हैं। अब ऑनलाइन करें तो फिर क्या है, वही जाने जो जिन फेसों को हम लोग पहचानते थे वही लोग हमें दिखे ऑनलाइन पे। क्यों? क्योंकि हमारा मैसेज उन्हीं को जाता था कि जी आज ऑनलाइन मीटिंग है। यू गॉट माय पॉइंट, कि अब हम जो लिंक भेजते थे तो श्रेयस को ही जाता, वो हर मीटिंग में श्रेयस ही आता।
लेकिन प्रॉब्लम जो था, सही बात, क्योंकि हम ग्राउंड से आए थे, तो जो दुखी था वो तो श्रेयस नहीं था, दुखी तो उधर साध था, है ना। अब वो कभी आता नहीं मीटिंग में क्योंकि उसके पास लिंक ही नहीं जाती, या ये भी हो सकता है कि साथ के पास सिस्टम ही ना हो, ब्रॉडबैंड ही ना हो। चलो ब्रॉडबैंड भी हो तो हो सकता है उसके घर के पास टावर ही ना हो। तो प्रॉब्लम ये था कि जो बीमार था, मतलब जिसको नीड थी असिस्टेंस की, उसके पास तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा था। वी ट्राइड आवर बेस्ट जूम से और फेसबुक से, ट्विटर से, लेकिन हमने रियलाइज कर लिया बहुत जल्दी ही, शुरू के 2-3 महीने में ही, कि जिसके पास तक हमें पहुंचना है वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। देन वी कनेक्टेड पनवार साहब के, भाई ऐसा है, आप हमें सपोर्ट करिए। और इनफैक्ट हम गए थे इनके पास इसी बात के लिए कि हमें ये सपोर्ट करें और हम इनके थ्रू आगे कम्युनिटी में नीचे तक अपनी बात को पहुंचाएं, क्योंकि हमें फैमिली मानते थे कि अगर हमारे स्कूल सेफ होते, तो हमारे स्कूल 2.5 साल तक बंद नहीं होते। ऐसा मैं फैमिली बिलीव करता हूँ। वो सेफ नहीं थे, इसलिए हमें बंद करना पड़ा और इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो हम इसे और क्या कर सकते हो, हमने कहा कि चलो स्कूल सेफ्टी के मैसेज को आगे बढ़ाते, जो आशा मोरे कह रही हैं, चाहे और भी जो कम्युनिटी रेडियो वाले कह रहे हैं। इन लोगों ने, मैं पहले, इन्होंने क्या किया कि एक सीक्वेंस ऑफ बहुत सारा इंटरव्यू बनाया। ये अपने तरफ से, जैसे आप जो कह रहे हो ना कि जी आप मटेरियल ले लीजिए, उसको पढ़िए, वो थोड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो ये क्या करते थे, सेट ऑफ क्वेश्चन लेकर के आते थे, अपने क्वेश्चन लेके आते थे कि हाँ सर बताएं। इनके सवाल 10-12 सवाल होता था, हम उसको जवाब देते थे। फिर यह क्या करते थे कि वहां अपने भाषा में हमारे जवाब को ट्रांसलेट करके और कम्युनिटी को सुनाते थे। बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने उस पीरियड में। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये सब लोग उस समय काम कर रहे थे। और इसीलिए हम लोगों ने, सही बात तो ये है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हम लोगों ने काफी टाइम इन्वेस्ट किया कम्युनिटी रेडियो के लिए। और जो भी बता रहे थे पवार साहब कि हम लोग साथ में गए एनडीएमएम कि भाई आप एक एडवाइजरी इशू कर दो यार, कि जिससे कि ये जो छोटे मोटे डिमांड है वो पूरे हो जाएं। और थैंक्स गॉड कि वो लोग एग्री भी हुए जब उन्होंने देखा कि, क्योंकि उस मीटिंग में सभी लोग आते थे, इवन एनडीएमए से भी कई बार लोग आए, एनआईडीएम से भी संतोष गुप्ता आए थे, संतोष कुमार आए थे, अनिल गुप्ता आए हैं, पहले पांडा साहब थे वो आते थे, ठाकुर साहब आए हैं, सब लोग आए थे उस प्रोग्राम। इवन ईडी एनआईडीएम बिंदल साहब भी आए थे उसी प्रोग्राम में कई। तो हम लोगों के अभी क्या है कि इस फैमिली को अब आगे बढ़ाने का जरूरत है, कि इस पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक ऐसा टूल है कि अगर इनको आप ट्रेंड करते हैं तो समझो, वो ऐसे कहते हैं कि एक महिला को ट्रेंड करो परिवार ट्रेंड हो जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ एक आरजे को ट्रेंड करो, वो 50 गांव ट्रेंड हो जाएगा। आप ट्रेंड करके देखो। एग्जैक्टली ये तो सही बात कही आपने। और सेम वो कैपेसिटी बिल्डिंग वाली बात जिसपे हमने कहा कि हाँ इस पे हम कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं, या तो हम जाएंगे या तो इनको हम बुलाएंगे, इस तरीके का कुछ किया जा सकता है। आज का डिस्कशन हमारा काफी लंबा हो गया और लेक्चर्स भी और एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा हमने शेयर कर लिया। आई होप मेरे पास एक एनआईडीएम की वीडियो है कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या काम है, एक बार इन सबको कम से कम अपने बारे में बताएं। और आफ्टर दैट आई थिंक वी कैन क्लोज फॉर टुडे एंड देन वी कैन स्टार्ट टुमारो देयर इज 2 सेशंस, दे आर टेक्निकल मोर, मतलब ज्यादा टेक्निकल है वो। दे आर अबाउट कि कैसे वो कम्युनिकेशन का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो ये यूज करते हैं, उसको कैसे रेजिलिएंट बनाया जा सकता है, उसका क्या रोल है, किस तरीके से। उसमें 2 हैं, एक तो खुद घोषर ज्वाइन करेंगे, अभी वो है वैसे नेहू में, ही इज डूइंग एन ऑफलाइन प्रोग्राम देयर। एंड सेकंड इज कौत्सव साहा, ही इज अ हैम रेडियो ऑपरेटर है वो खुद ही, और वो 7 डिजिटल इंडिया चलाते हैं, ही इज अ हैम। तो he will tell all the participants about टेक्निकलिटीज की कैसे कैसे इन चीजों को और ज्यादा हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो छोटी शेयर करना चाहूंगा, 10 मिनट की है पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि ये एनआईडीएम के बारे में है कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या है। आई होप आप सबको दिख रही है। यस। और हाँ, आवाज आप लोगों को जा रही है?
Disasters are both natural and human-induced, like floods, drought, landslides, avalanches, earthquakes, tsunami, chemical nuclear emergencies, and epidemics. Every year we suffer at the hands of these calamities and suffer heavy due to their detrimental impacts. Disasters also disrupt development, leading to a slowdown in the economic growth rate. Therefore, to be able to achieve the desired targets of Sustainable Developmental Goals (SDGs), progress should remain resilient and uninterrupted. The DM Act 2005, along with the Prime Minister's 10-point agenda on disaster risk management (DRM), realm calls for integrating the principles of disaster risk reduction across all developmental sectors. Also, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (DRR), to which India is a signatory, under its 4 priorities and 7 targets, focuses on building economic resilience and promote ease of living. With this aim of making our nation disaster resilient, the National Institute of Disaster Management was established on 11th August 2004 at New Delhi, with responsibilities for human resource development, capacity building, training, research, documentation, and policy advocacy in the field of disaster management. In the backdrop of the International Decade for Natural Disaster Reduction, a National Center for Disaster Management was established in 1995 in the India Institute of Public Administration by Ministry of Agriculture and Corporation. The center gained impetus with its redesignation as National Institute of Disaster Management under Ministry of Home Affairs, which was constituted under the Disaster Management Act 2005 as a premier institute for training and capacity building for disaster management. The campus of the National Institute of Disaster Management spreads across 7 acres. This campus has been constructed with modern technologies following latest GRIHA and green building norms. State-of-the-art infrastructure facilities has been provisioned for the faculty members, staff and researchers who can work in a highly conducive environment to achieve the vision of NIDM. Executive Director of the Institute, who is also the Member Secretary of the Institute and its governing body, runs the day-to-day administration of the Institute. NIDM has total 86 sanctioned posts, 57 for New Delhi campus and 29 for Southern campus. To make the country a resilient nation, highly dedicated and proficient NIDM team that has been selected constitutionally work relentlessly along with the Executive Director, Vishisht Seva Medal recipient Major General Manoj Kumar Bindal to achieve the mission of resilient and disaster-free India. NIDM is engaged in international capacity building process too. International cooperation is one of the critical and most important mandates for building resilience, where we have been engaged on a regular basis. Inclusive DRR with leaving no one behind is our motto. Establishment of child-centric DRR, Center for Gender Studies and special focus on persons with different abilities are the key interventions in this regard. NIDM is committed to the agenda of mainstreaming gender in disaster risk reduction. The Institute maintains a strong focus on integrating gender concerns in the disaster management cycle. For this, capacity building programs are run exclusively on the issue, along with including it as a cross-cutting issue in other initiatives. NIDM has established India Universities and Institutions Network for Disaster Risk Reduction to address the Agenda 6 of 10-point agenda for DRR of Honorable PM, which stresses on the need to develop a network of universities to work on disaster issues in India. NIDM has a geometeorological risks management division that hosts 3 specialized centers: Center for Early Warning and Communication, Center for Hill Area Development, and Center for Coastal Disaster Risk Reduction and Resilience.
In addition, it has 3 more centers, one center for flood monitoring cell, the second one on emergency operation center, and the third one is World Center of Excellence on landslide disaster reduction. Resilient Infrastructure Division of the Institute caters to training and capacity building of the engineers, architects and town planners of the country, serving various line departments as, for example, municipalities, PWD, PHE, rural engineering, towards the vulnerability standards, documenting disaster affected sites for reconstructions, and implementing all the things under National Building Code developed by Bureau of Indian Standards. NIDM, since its inception, has considered climate change disasters and extremes at the fore of its research, policy and training agenda. At NIDM, we focused on environmental changes as a key driver of risk that includes not only climate change but also the attributes like land use, landscape and natural resource degradation. We host a Center of Excellence on Climate Resilience under the National Action Plan on Climate Change. NIDM provides year-round internships and dissertation opportunities for students pursuing masters and higher studies from various disciplines across India under the mentorship of NIDM faculty members. Forestry, Biodiversity and Animal Inclusive Disaster Risk Reduction section of the ECDRM division of NIDM is basically concerned with imparting training and enhancing capacity building in the areas of forest conservation, forest fire management, agroforestry, conservation of biodiversity, mitigation measures to lessen the threats to it, animal inclusive disaster risk reduction, animal protection and care during the times of and post-disaster situations, associated global and national acts, regulations, policies, nature-based solutions for climate crisis and its impact on the 3 segments of forestry, biodiversity and animal inclusive disaster risk reduction. NIDM is building capacity of stakeholders like engineers, architects and urban planners for making urban development as resilient development and to make cities disaster safe. NIDM is also helping various cities in developing disaster management plans of urban areas. India Disaster Resource Network (IDRN) is a web-based platform for managing the inventory of equipment, skilled human resources and critical supplies for emergency response. NIDM campus is equipped with latest IT infrastructure including internet lease line, Wi-Fi, connectivity, CCTV surveillance, latest office equipments, IT-enabled training halls, video conferencing tools, emergency operations center, etc. Even during the COVID-19 pandemic, NIDM continued its capacity building activities with the help of latest e-learning tools. NIDM receives 100% grant from Ministry of Home Affairs. Recently, NIDM has established its 2 campuses at Rohini, Delhi and Southern Campus at Krishna district of Andhra Pradesh. NIDM is promoting capacity building in disaster management through online courses and self-study programs which are informative, convenient and user-friendly. NIDM imparts training both in-house and off-campus in collaboration with state and UT governments to senior and middle level officials, non-government organizations, researchers, students and grassroots members working in the department. The Library of the National Institute of Disaster Management has been acting as a crucial resource and learning center to meet the information needs of its faculty, staff member, research scholar from India and abroad. The institute is diligently working towards fulfilling its core mandates with utmost zeal and commitment and envisions to become a full-fledged university in its endeavors to make India disaster resilient. The vision of the institute is to be a premier institute of excellence for training and research in disaster risk reduction. Also, be recognized as the leading institution at international level in the realm of disaster management and strive relentlessly towards making a disaster resilient India by promoting the culture of prevention and preparedness at all levels. NIDM is ever evolving and expanding its vision in its pursuit to establish India
as a disaster-resilient nation on the world canvas. So this is what we are and what we do. I hope it is now a little bit clear to all of you. And from our side, we are done for today. We will meet tomorrow. If you people have any queries and any questions, anything else you can share, we can talk. Otherwise, we will close it for today and we will join it tomorrow at 11 a.m. in the morning. And from NIDM side, I would like to thank our both the speakers for today's program, Tarun sir and Pawar sir, for interacting with the participants and deliberating fruitful discussion and lecture. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for giving me an opportunity to interact. थैंक यू कुमार साहब, आपको तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे, काफी पॉजिटिव एक आदमी होता है जो चीजों को रोकता है, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कल हमारा इस ट्रेनिंग का आखिरी दिन होगा, तो मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि आपके पास पूरा दिन और अभी पूरा रात है। मैं ऐसा चाहूंगा कि कल हर आदमी आप लोग कम से कम 2-2 सवाल तो लेके आइए मेरे लिए, है ना? कम से कम 2-2 सवाल आप सब लोग लेकर के आइए मेरे लिए, तब मैं समझूंगा कि कुछ इंसाफ हो रहा है। तो चलिए हमारे तरफ से जी। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। हाँ नकुल जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश से CRS कुठार से SS बनोल्टा बोल रहा हूँ। 2-2 सवाल क्यों, आज ही आपसे जो है सवाल कर लेते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। स्वर साम्राज्ञी जो है ना, वो लता मंगेशकर जी थी जी, उनके स्वर की जो है तारीफ पूरे वर्ल्ड ने की, और आपके स्वर की तारीफ भी होनी चाहिए। मैं ये अनुरोध करूंगा सबको। बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके, बड़े डिटेल से आपने समझाया है। हमारे यहाँ पहाड़ी एरिया है, यहाँ तो हमेशा ही जो है ये हैजार्ड एरिया है। अभी भी जो है अर्थक्वेक से जो है कुछ का कुछ हो सकता है, पर प्रभु की बड़ी कृपा है कि अभी तक जो है पता नहीं कैसे रुका है। कहीं भी जो है पहाड़ गिर जाता है, कहीं भी जो है वो बिजली की लाइनें जो है ठप हो जाती है, कहीं भी वो बादल जो है फटने की घटनाएं हो जाती है। तो इस तरह के एक नहीं अनेकों डिजास्टर जो है हो जाते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र परमार ने जो है बहुत बड़ी कोशिश की है, बहुत बड़ा इनका प्रयास रहा है, हमें बड़ी खुशी है। और यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है हिमाचल की, उनसे भी इन्होंने भी संपर्क किया, हमने भी संपर्क किया था, पर इसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। जरा मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है। आ रही है। सीरज जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपकी हंसी जो है इट इज वेरी कनिंग, वी आर सीइंग इट सो फार। बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के वेबिनार हो, और विशेष करके कम्युनिटी रेडियोज के लिए इस तरह की पहल जो है हो करके एक बहुत बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। इस ओर जो है वो ध्यान जा रहा है, इस बात की खुशी है। नकुल जी तो प्रश्न की बात कर रहे थे, पर हम आप लोगों के इस कार्यक्रम को इस ढंग से संचालन करने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए जो है वो 2 शब्द कहना चाहते थे। आपका बहुमूल्य समय नहीं लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे, और मैं अभी ही आपको प्रॉमिस करता हूं कि एक दिन इन पर्सन भी मिलूंगा मैं आप लोगों से। व्हाई नॉट ऑफ कोर्स प्लीज। क्योंकि हमने रेडियो पे बड़ा बात कर लिया, एक दिन मिल के बात करते, बैठ के चाय पियेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।